Oh, this is a That drive moment. I'll never forget. Yeah. This is the moment. I'll never forget. Mitaji, I want you to say a few words. Talk to me about why this film was important to you. My path is an actor's path. So, a film that I choose to do is the life that I'm going to live for that much of time. It's very precious. It's not something I take as a job. You know, the people who are going to be there with me. Why I love acting is also because it allows me just to love people unconditionally. That is a given. If you're going to act with a co-actor, whoever it is, in personal life, if you don't have a very good equation with them, in order to actually act well with them, you have to put aside that not very good equation and actually just love them for who they are, what they are, and empathize. And मुझे एक्टिंग इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो वो मेरे ईगो को नष्ट करती है, दूसरा वो मुझे बिल्कुल अनकंडीशनल लव के स्टेट में डाल देती है और ऐसा इश्क होना अपने को एक्टर या एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक्टिंग के टाइम संभव होता है. तो मुझे ये constant falling in love with each and every one of my co-actors is a very it's a very soul-defining experience for me. Therefore, every film that I do is a precious part of my life. In fact, once I was at a marriage ceremony and there are a lot of photographs लोग आपके साथ खींचते हैं. तो हर फोटोग्राफ में आपको खड़े होके ऐसे करना होता है क्योंकि जो फोटो खिंचवा रहा है अगर वो आप ऐसा मुंह बनाए तो क्या करेगा बेचारा. तो मेरे मौसा जी थे, वो कह रहे कि तुम थक नहीं जाती हो ये स्माइल करते करते. मैंने कहा हाँ थक जाती हूँ. तो उन्होंने कहा ये फेक स्माइल्स होंगी. मैंने कहा हाँ कभी थोड़ा तो मुंह बनाना ही पड़ता है. कहते तुम एक्टर्स कभी सच बोलते हो जीवन में? हाँ. तो मैंने कहा हाँ जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तब. Wow, that's beautiful. That's beautiful. And of course, I was very thrilled about this project because Vishal Furia was directing it. I did not see the original Marathi, even though he told me to. I said no. And I trust Vishal's vision totally. And it was a beautiful experience. And this was one of the loveliest shoots with everyone over here. He played my husband. This little baby was the one I was troubling. This was, you know, many things. So it's been a wonderful cast and a wonderful experience. And thank you, Vishal. Thank you, each one of my co-actors, my darlings. Thank you so much. Thank you so much. Over to you, back to the audience. Hello, Yes. hi Nusrat, Pooja here from Awesome TV. Hello. So Hi. So the trailer looks simply awesome. You are playing a very promising role, and you have series of upcoming films as well, which will showcase different sides of you as a performer. So including Ram Setu, Janhit Mein Jari. So what do you have to say about the same as an actor? What are you looking forward to? Looking forward to all of them. Very happy. Could not have asked for a better year. Could not have asked for a better situation right now. I think कोविड में लगता था कि पता नहीं क्या होगा. 1 साल 1.5 साल सब घर बैठे थे. टेंशन सबको उतनी थी, मुझे तो थी. बट जैसे ही लॉकडाउन खुला है, there's been such boon of work, and I honestly would give that to OTT platforms because they've really given us a new lease of life. Back to back काम चल रहे हैं, back to back पिक्चरें हो रही है, and I just feel like कि were we really worried in that 1 year when the future looked this nice? So we never know the larger picture here in life. We should just trust what's happening with us in that moment and know that there is somebody up there, like I said, I believe in energies, that's putting it all together for you at some point. So yeah. Thank you so much. Hi, this is Rutunjay from Pop Diaries. First of all, congratulations to the team for this amazing, horrifying trailer. I have a question to Nusrat. Like, what inspirations did you take from the original movie? Or we can say Pooja Sawant, who played your character. And also हमने बॉलीवुड में बहुत सारे impregnant characters देखे इसके पहले, comic ways में, serious ways में. So, what challenges did you face while playing this character? यार मैंने ना पहली वाली फिल्म देखी नहीं, अभी तक नहीं देखी. ये जैसे मीता जी ने कहा, मेरा भी कॉन्शियस डिसीजन था एंड ऑल्सो समथिंग विशाल सर सजेस्टेड दैट आई शुडंट डू. मैंने तो इनफैक्ट इस वाली फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी अभी तक. हाफ से, फर्स्ट हाफ पढ़ी है, सेकेंड हाफ नहीं पढ़ी है. बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू नो कि नेक्स्ट क्या आने वाला है.
दिस वॉज माई फर्स्ट सॉर्ट ऑफ हॉरर स्पेस फिल्म, एंड मेरे लिए वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन आना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक आई वॉन्ट टू बी प्योर एंड ट्रू टू इट, एंड आई फेल्ट कि अगर इफ़ आई नो कि ये यहाँ से चल के आएंगी, यहाँ जाएंगी, या मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, तो आई विल प्रीएम्प्ट इट. माई रिएक्शंस विल नॉट बी वॉट इट कैन बी ऑन दैट फर्स्ट इंस्टिंक्ट. तो मैंने फिल्म नहीं देखी और मुझे वो विजुअल्स नहीं चाहिए थे फर्स्ट फिल्म के. आई वॉन्टेड टू इमेजिन माई इमेजिनेशन ऑफ इट. आई वॉन्टेड टू कीप इट एज ओपन कि हम कुछ एक नई फिल्म बनाते हैं, नए इमेजेस बनाते हैं और नए परफॉर्मेंसेस करते हैं. ओनली देन विल द फिल्म एक्चुअली फील न्यू एंड कम अक्रॉस एज न्यू. नया नैरेटिव वरना आता नहीं. तो मैंने देखी नहीं थी. बाकी सर ही बता सकते हैं बिकॉज सर ने पहली और सेकंड देखी है. विशाल ये भावना नवभारत. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जब ये फिल्म की, क्योंकि अब बहुत, जैसे हमने द बुक भी देखी, बहुत डिफरेंट तरह की थी, उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था, तो इस फिल्म के लिए आपने क्या रिसर्च किया? और सेकंड थिंग कि जो हॉरर जॉनर है वो डिफरेंट कल्चर में अलग अलग होता है, यानी जो क्रिश्चियंस हैं उनका कुछ डिफरेंट रहता है, कुछ जो हिंदू में इसकी जो पूरी व्याख्या की गई है वो बिल्कुल अलग होती है, और ये बिल्कुल रिमोट एरिया जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है. तो उसके रिसर्च पर आपने कितनी मेहनत की? और सेकंड थिंग है कि एक और चीज़ पूछनी थी कि जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत ही माइंड ब्लोइंग और डिफरेंट है, उसके बारे में भी कुछ अगर आप बता सके तो. जी थैंक यू. सो मैंने ये फिल्म पहले मराठी में बनाई है 5 साल पहले. 2017 में रिलीज़ हुई थी वो, 2015 में हमने शूट की थी उसको, और ये अब 5 साल बाद हमने ये नया वाला वर्जन बनाया है. तो जब पहले वाला वर्जन भी बनाया था तो इसमें कुछ इवेंट्स हैं फिल्म में जो बहुत सारे ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है. बहुत सारी कहानियां हैं, उन सबको मिलाकर ये कहानी बनाई गई है. और वो जो उन कहानियों का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हम कहना चाह रहे हैं, पर फिलहाल मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे उसको नहीं बताऊंगा. आप फिल्म देखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरफ ये फिल्म जा रही है. तो उस मुद्दे के लिए काफ़ी रिसर्च किया था, और उसके आसपास जो औरतें क्या फील करती है जब वो चीज़ उनके साथ होती है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारी फीमेल ऑडियंसेस को मैंने पूछा था और उनके किस्से जाने थे, उनका इमोशनल क्या माइंडसेट था वो जाना था, उस पॉइंट पे उन्होंने क्या फील किया था, और फिर ये हॉरर फिल्म बनाई है ताकि ऑडियंस भी वही इमोशन को उन्होंने जैसा एक्सपीरियंस किया था उसी तरीके से वो एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन है. तो वो रिसर्च पहली वाली फिल्म में हुआ था, और क्योंकि ज़माना ज़्यादा बदला नहीं है एक तरीके से मैं बताऊं तो वही रिसर्च और थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें भी काम में आया. एज फार एज रिलीजन की बात करो तो फिल्म एज सच कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करती है, एक माइंडसेट के बारे में बात करती है जो लोगों के दिमाग में है, और वो जो इस फिल्म का फाइनल कंक्लूजन है वो उस माइंडसेट की वजह से वो कंक्लूजन निकलता है. तो हमने कोई पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं किया है, हमने एक इस तरीके की दुनिया बनाई है जहाँ पे हम कोई रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम सिर्फ माइंडसेट को ही पॉइंट आउट कर रहे. तो सारे प्रैक्टिसेस जो आप देखेंगे उसके अंदर, सारे रिचुअल्स देखेंगे, जो सब देखेंगे वो सारे फिक्शनल है, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते. Vishal, thank you so much, and I want to thank our friends from the audience because we're running out of time. So really sorry, we'll have to say goodbye to you. But I just want to say once again, don't forget the film's coming very, very soon. To the team that is on stage at this point, thank you so much for joining us and giving us this movie. But you have to switch on the mic, yeah. You'll have to. Actually, there are 2 mics in the audience. So Sanju, you might have to, yeah. No, mains, yeah. सर आप पूछ लीजिए. Sir, आपका mic on. आप अच्छा बाद में पूछ लेना. Okay. Please continue. Yes. Nusrat, this question is to you. You have Chori and you have Ram Setu, and you also have one more project, lined up. And in every project, you're playing different roles. So how does it feel, experiencing different roles altogether? And tell us something about that. Exactly what I wanted to be an actor for is to do different roles. I think from Pyar Ka Panch, from LSD actually to now, my attempt has always been to take a role I've not done before. अब अगर वो ऑफ़र नहीं होता तो वो मेरे हाथ में नहीं है. जब ऑफ़र होता है तो मेरा अटेम्प्ट ये है कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग लेके आऊँ.
And honestly, as an actor, no, I can't do this on my own. I need to work with people on the film, whether it's my director, writers, co-actors, because they make the character. Isolation में कोई नहीं जीता है, जीते हम सबके साथ ही है. तो अगर वो नहीं होंगे तो मैं अलग या मैं ट्रू टू जो भी कैरेक्टर है वो बन नहीं पाऊंगी. So I'm just happy that I'm getting different kind of films and I'm able to explore myself. I'm still learning. I'm really honestly still learning. I don't know where I will land up, but I'm discovering things. So happy, very happy. Thank you for that. And I believe we have time for one last question. Sir, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Hello. हाँ जी. Yeah, Sir, बोलिए ना. Yeah, this is Sohail from Bollywood Halchal. Vishal, Nusrat, Mita ji and everyone, congratulations. ये फिल्म पहले से it was decided it will go on OTT because जो हॉरर होता है, जो म्यूज़िक होता है, जो बैकग्राउंड जो हमने आज मतलब इतने बड़ी स्क्रीन पे जो देखते हैं उसका मज़ा अलग होता है. तो was it decided that it would be going on OTT platform या it was in the COVID time that you all decided to go for a और अभी फ़िलहाल जब वापस थिएटर्स है ओपन तो वर देयर एनी प्लान्स लाइक यू नो कि इसको हम थिएटर्स में ही बिकॉज इसका मज़ा जो है वो बिग स्क्रीन में ही है. सो फिलहाल का दौर थोड़ा सा अभी भी मुश्किलों वाला दौर है. हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है. फिलहाल भी थोड़ी सी ऑडियंस घबराई हुई है थिएटर्स में जाने के लिए. धीरे धीरे माहौल खुल रहा है लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं खुला है. तो ऐसे में अगर डर के, हालांकि डरावनी पिक्चर है वो बात अलग है, लेकिन वो डर अलग है और खुद की सेहत का, खुद की ज़िंदगी का डर अलग है. तो खुद की ज़िंदगी को जोखिम में डाल के, सेहत को जोखिम में डाल के जाके थिएटर में देखने का कितना मतलब है ये मुझे पता नहीं है. सो रादर मैं चाहूँगा कि ऑडियंस घर पे बैठे आराम से अपने फैमिली के साथ देखे ये पिक्चर, ताकि वो डर ना रहे और ये वाला डर रहे जो उनको एक्चुअली महसूस करना चाहिए. और उसके साथ साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो मुझे एक बहुत ग्लोबल ऑडियंस दे रहा है. तो जहाँ शायद इंडिया में रिलीज होती, कुछ और देशों में रिलीज होती, अब ये फिल्म 240 कंट्रीज में रिलीज हो रही है. तो मेरे लिए जो एक बड़ा मुद्दा था जब मैं रीमेक बना रहा हूँ मराठी से हिंदी में बनाने का, मुद्दा यही था कि एक लार्जर ऑडियंस को ये कहानी बताई जाए. तो अगर वो ऑडियंस इतनी बड़ी हो जाती है तो उससे बेटर क्या होगा मेरे लिए. तो इसीलिए मैंने चूज किया कि नहीं, ये रास्ता ठीक है, लेट्स गो दिस वे सो दैट लेट द ऑडियंस एंजॉय द करेक्ट वे ऑफ दिस फिल्म. Absolutely. Thanks, Sohail. Thank you so I much. really appreciate it. Some people don't need a mic. नहीं मैं सामने ही रहती हूँ इसलिए ये इन्होंने अरे नो स्कैर्ड, मैं वापस गन्ने के खेत में आ गई. अभी तो निकली थी, फिर से ला दिया इन्होंने. You know, I think I'm so sorry, ladies and gentlemen. I know that we've met after a long time as friends and professionals, but this is the time where we'll have to say goodbye to our wonderful friends from the media. If I have Sanjeevani's permission. Sanjeevani, is that okay? All right. Thank you so much for Thank you, joining us thank you today. so Don't much. forget Thank you, to watch everyone. the Thank film. you so much. It's coming up very Please soon, to as you watch know. the film. Yes. Please enjoy it. Please tell everyone to watch it. Thank you. Don't forget, tune in to Prime Video on the 26th of November as Chori will release in India and as Vishal said, across 240 countries and territories on the 26th of November. This is us signing out. Please do watch the film. Bye-bye.